Janmashtami, also known as Krishna Ashtami, Gokul Ashtami, and Ashtami Rohini, is an annual Hindu festival that celebrates the birth of Lord Krishna, the 8th avatar of Lord Vishnu. The festival is observed on the 8th day Ashtami of the Hindu lunar month of Bhadrapad, August to September. As the story goes on the auspicious day of Devaki's marriage to Vasudev, an oracle had predicted Kans, the king of Mathura's death in the hands of his own sister Devaki's 8th son. Grappled in the greed of preventing the prediction from coming true, Kans had attempted to kill off the new bride there itself. But Vasudev, her husband, pleaded for her life and in return promised to immediately hand over every child that would be born to them. Although the tyrant Kans did not kill off Devaki, he put the newly wedded couple behind the prison bars of Mathura itself. For 7 long years, they witnessed their children being killed one by one. And on the 8th year, Sri Krishna was born to Devaki and Vasudev within the confines of the prison at Mathura, 8th day of the dark fortnight on the month of Bhadrapad. In the darkest hour, a strange air had taken over the entire place of Mathura. It had fallen into a trance of deep sleep while the gates of prison naturally opened up. Vasudev had carried infant Krishna on a basket over his head across the raging Yamuna as it torrentially poured outside. He successfully transferred baby Krishna to Nand and Yashoda's humble abode in Vrindavan, where he was brought up. The other celebratory customs associated with Janmashtami include reading and recitation of religious texts, enchantment of the life of Krishna according to Bhagavad Puran, devotional singing till midnight, which is the time of Krishna's birth, and fasting, which is Upavas. Do you know that there is a 16-word Vaishnav mantra, which is also known as Krishna Mahamantra? It follows as Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna, thank you and Jai Hind. Over to the anchors. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you Ishani and Pratiji for sharing the story of Janmashtami with us. यह जन्म दिवस है एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने बचपन इस तरह जिया कि हर माँ अपने बच्चे को कान्हा पुकारती है, जवानी ऐसी कि हर पिता अपने पुत्र को कृष्ण जैसा बनाना चाहे, और कृत्य ऐसे कि आज हम उनका 5230वां जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आठर की कोपल मिश्रा को बुलाना चाहती हूँ, जो कृष्ण पर एक कविता प्रस्तुत करेंगी। सुप्रभात एवं जय हिंद। मैं कोपल मिश्रा आज आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण पर एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। कृष्ण पर जिसने जितना शोध किया उतना उनको जाना। कृष्ण ऐसा विषय है जिनके बारे में जानते तो सभी हैं, पर उनकी लीलाएं आज भी अपरंपार हैं, अबोध हैं। उन पर प्रस्तुत है मेरी यह कविता कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं, जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं, मूल है मनुष्यता का, युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है। कृष्ण बोध मित्रता के, मित्र पर जो आए आँच तो लेके चक्र दौड़ जाएं, ऐसा क्रोध कृष्ण है। कृष्ण क्रोध का लिया या कंस हेतु होंगे, किंतु नाग पर नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। पूतना के उद्धार कृष्ण है, गोवर्धन को उंगली पे धार लें वे कृष्ण हैं। 100 अपशब्दों को सुन धैर्य धार फिर कर दे शिशुपाल वध वे कृष्ण हैं। उद्धव की मीठी बोली में कृष्ण है, तो गीता के सार में भी कृष्ण है। यशोदा के हैं कृष्ण तो देवकी के भी हैं कृष्ण, राधा के हैं कृष्ण तो रुक्मिणी के भी हैं कृष्ण। अगर मीरा के एक तारे के राग में है कृष्ण, सूरदास की दिव्य दृष्टि में है कृष्ण। देव बिहारी ने लिखा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो दिनकर की रश्मि रथी में भी है कृष्ण। मित्र है कृष्ण, सलाहकार है कृष्ण, सारथी है कृष्ण, चेतावनी है कृष्ण, चेतावनी है कृष्ण। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कोपल। कृष्ण का तो चरित्र ही निराला है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षयति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रिय। इसीलिए तो कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री कृष्ण जो माँ के कान्हा, पिता के प्यारे, गोपियों के सखा, सुदामा के मित्र, अर्जुन के सारथी, सच्चे पथ प्रदर्शक और शांति के पथनायक। आइए देखते हैं एक नाटक, कृष्ण की चेतावनी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, शायद इसका कोई अंत नहीं। द्वापर से कलयुग तक लगातार चलती आ रही है ये कहानी। कभी महाभारत तो कभी रश्मिरथी। कृष्ण हर बार चेतावनी देते हैं, पर युद्ध है कि रुकता ही नहीं। पितामह कल भी चुप थे, आज भी चुप है। दुर्योधन कल भी सब हथियाना चाहता था, आज भी उसे ही सब चाहिए। कर्ण आज भी दुर्योधन के एहसान तले दबा है, आज भी तोपे तनी है, आज भी मिसाइल गरज रही हैं, आज भी टंकारे कह रही हैं। महाभारत जारी है। देखते हैं दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी। प्रणाम पितामह। प्रणाम देवकी नंदन। कहो कैसे आना हुआ? आज मैं एक दूत बनकर आया हूँ, पांडवों का संदेशा लाया हूँ। कैसा संदेशा कृष्ण? पूरा हुआ अज्ञातवास, 2 राज्य अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, पांडव वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। 5 गांव क्या, पग भर भूमि न दूंगा। मैं पांडवों को कुछ न दूंगा। आए हो पांडव दूत बनकर, मैं तुम्हें ही बांध लूंगा। दुशासन बांध लो इस ग्वाले को। हाँ भांजे, बांध ले। दुर्योधन पगभर भूमि भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। छिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ दुर्योधन बांध ले। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। रुकिए प्रभु। हे वीर, तुम ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। मान जाओ कर्ण, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरन रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। हे वासुदेव, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। हे कर्ण, हे वीर, शतबार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। कृष्ण ने हर युग में युद्ध रोकना चाहा। कृष्ण ने हर युद्ध में कर्ण को समझाना चाहा। कृष्ण ने हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय चाही है। कृष्ण कहते हैं, मैं तो केवल सारथी हूं, मैंने सबको विवेक दिया है, परंतु ये तुम्हें समझना होगा, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हे मनुष्य, किसी भी परिस्थिति में विवेक से काम लो। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, यही समझाना रश्मि रथी का उद्देश्य है। Well, to begin a day with such a wonderful presentation, I really want to thank everyone who has worked so hard to put this particular event on the stage. And it's a very, very befitting presentation for a day that we all are celebrating today. For most of us, Janmashtami probably would be yet another occasion to spend with the friends and family, and perhaps to, have some or the other sweets made at home, and to dismiss it off as yet another festival. But when seen in the context of the Gita, when seen in the context of the Mahabharata, and when seen especially in the context of the philosophy that was Lord Krishna's birth and his entire way of being, this day acquires so much more of importance. This is one of the divine beings who has influenced so much of our life by the sheer dint of simplifying the entire essence of our life, and that is the philosophy of karma. It is Lord Krishna himself who has shown us
a ready reckoner. So many years back, we did not have a life skills program. And at that point of time, the Gita served as a life skills program. And Lord Krishna epitomizes what a friend ought to be. What is the absolute responsibility of a child? Who is a true friend? Who actually takes the right decisions in adversity? These are small, small nuggets of wisdom and life lessons which we can know once we study the Krishna Avatar and all its aspects in great detail. So many of us have seen scenes from the Mahabharata which is enacted. It is not mythology. If you try to draw parallels in today's world also, which is what Aarti ma'am and the group has tried to do, what we see is that whenever there is adversity, don't we turn to some Krishna in our life? Don't we also look for that one mentor who will tell us when we are in confusion, when we are in doubt? Don't we also turn to that one mentor, one friend, one guide who shows us the right path? That makes us understand that what was written then is relevant even today. When there is a power lust, when there is a battle for supremacy, then someone, whether it is a non-aligned nation like India, which puts together the powers of the world, calls them on a political forum, names it as G20, and makes warring factions sit down to work for common good. Aren't we again playing the role of one Sutradhar, which is the voice of Vivek and reason in a world which is grappling with adversity? So dear students, what I would like to tell you that so many times we tend to dismiss a particular day in the context of a religion. Let us not try to put these thoughts into the framework of a religion, but on the whole, let us look at them, let us react to them, let us see them. ये वो आदर्श हैं जो हमें अपने जीवन की धुरी बताते हैं. हम कौन से मूल्य, कौन से सिद्धांत, सच और सत्य का परख किस आधार पे करेंगे, कृष्ण की जीवनी वो सब हमें सिखाती है. इसको हम अगर धर्म के दायरे में बांध देंगे और इसको अगर हम कहेंगे कि जन्माष्टमी एक त्यौहार है, तो शायद हम कृष्ण और उनके दर्शन को और उनके जीवन को सही तरह से अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे. सो लेट अस मूव बियॉन्ड द बैरियर्स एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ रिलीजन एंड लुक एट कृष्ण's life and the Gita as a life manual. I think that would be the greatest religion, because eventually the Gita also taught us nothing but humanity. Thank you so much, Aarti ma'am and the department, for putting together such a wonderful presentation today. Take care everyone. Stay with smiles. Jai Hind. थैंक यू प्रतिमा मैम, थैंक यू प्रेरणा मैम, आप सभी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए. और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम और बेहतर करते रहें. और आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आएँ. बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन सबकी एक ही चॉइस है कि मैम एंकरिंग में ले लीजिए. लेकिन कई बार आपके रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वैल्यूज़ सिर्फ याद की हुई नहीं है, ये वैल्यूज़ आपके अंदर उतरती हैं. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.